Hey, hello to you all. Today, on the occasion of World Mental Health Day, I will be discussing with you what is mental health and what are mental health issues. How we realize that we are suffering from mental health problems. Realization of mental health is very important, right? Until we realize, we will not do anything to heal it, right? So, what is mental health? Is it only the absence of any mental disorder? Is it? No. Mental health is about how people think, how they feel, and how they behave. Means it is well-being of a person's cognition, behavior, and emotions. Being in good mental health doesn't mean we will always be in a good mental health. It is dynamic, right? It is dynamic. Mental health problems touch us sometimes or the other, or some way or the other. It may be in us, it may be in our families, it may be in our colleagues. So it affects us in a variety of ways. Causes can be genetic, biological with chemical imbalances, life experiences like exposure to abuse, mother's exposure to any disease during pregnancy. So there are many causes. But the realization that we are having mental health issues is very important. When we go from sadness to depression, when simple symptoms becomes clinical symptoms, we need to realize this. And also people around us need to realize the changes going in ourselves so that they help in treating us. So that they make aware that some symptoms are developing, some changes are coming in the person. When mental problem starts, people feel worse due to lack of care and due to trigger of symptoms. Today, there is insight of some full-fledged psychotic symptoms. Full-fledged psychotic symptoms means when people have the symptoms of hallucination and delusion. People got to know that they are suffering from mental illness. Means the people who are having delusion and hallucination, people know that they are suffering from mental illness. Hallucination has become a common word today, right? But there are some signs, some early warning signs, which is neither understood by the person himself or the people around him. Like decrease or inability in daily functioning. Daily functioning means sleeping process, eating process, interaction with family members. When you see these inabilities, like the person is unable to sleep, unable to eat proper, his sleep-wake cycle is disturbed, he is not interacting properly with the family members. If these type of symptoms, these inabilities continues since 4 to 5 days and also with an increase, then this may be a warning sign. When the person is not giving enough time to himself, his or her daily schedule gets messed up, self-esteem goes low, it should be considered as a warning sign. Of course, there should not be any organic pathology. Means you have visited a doctor, he has recommended some test, all the test reports are okay, all are fine, but still the symptoms persist. The symptoms which I mentioned above persist, then this is an early sign of mental issue. Okay, let me be bilingual. जब अचानक कोई इंसान सस्पिशियस होने लगता है, वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता है या बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है जो सही नहीं है, he doesn't have proof of his sayings but still he is saying all those things, यानी कि कहीं ना कहीं उसके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आया है. वो जो सोच रहा है उसके पास कोई प्रूफ नहीं है. He cannot prove himself right, he cannot prove himself true, but still he is thinking that. So there is some problem in him. When the conversation lacks spontaneity, means जब व्यक्ति एक इंसान नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर रहा,
उसके पास या उसके स्पीच में वो कंटेंट नहीं है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, और ही इज़ यूजिंग अननेसेसरी वर्ड्स इन स्पीच, या ही इज़ जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू द अदर rapidly. So this indicates a thought process problem. It means that he is having some thought process problem and which is related to mental health issue. रूम में अकेले बंद रहना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, सडन लॉस और गेन ऑफ वेट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को अवॉइड करना, ऐसा सोचना, ऐसा थॉट रखना कि मेरा जिंदा रहना अब किसी काम का नहीं रहा, मरने का ख्याल आना, ऐसा सोचना कि कोई मुझे समझता ही नहीं, मैं अपने परिवार के लिए एक बोझ बन चुका हूँ, कंसंट्रेशन नहीं होना, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, ये सब एक साइन है मेंटल इश्यू का. दीज ऑल आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. तो there are many such symptoms which person around him are not able to understand कि क्या हो रहा है, what is he going through. One of the most common symptoms today in our society is anxiety disorder. It has become a common problem today. एंजाइटी इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना. जब भी किसी तरह के डर को हम एंटिसिपेट करते हैं तो हमें एंजाइटी होती है. किसी में एंग्शियस होने का एक हैबिचुअल टेंडेंसी होता है, किसी को वो एक सर्टेन मोमेंट में एंजाइटी होता है. कुछ एंजाइटी के सिम्टम्स है ट्रेमर्स होना, रेस्टलेसनेस होना, हार्ट बीट बढ़ जाना, टॉयलेट लगना, पेट खराब हो जाना, डायरिया होना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, इरिटेबल हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, नींद नहीं आना, आवाज़ के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाना, मतलब ज़रा सी भी आवाज़ आए तो बर्दाश्त नहीं कर पाना, या जो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है, अपने आसपास का वातावरण अनरियल लगना, ऐसा लगना कि सभी एक्टिंग कर रहे हैं. ये सभी एंजाइटी के सिम्टम्स हैं. पैनिक अटैक में यही सब सिम्टम्स जो मैंने अभी मेंशन किया, पैनिक अटैक में यही सब सिम्टम्स होते हैं, बट ये बहुत सीवियर लेवल पर होते हैं. इसका एक सडन ऑनसेट होता है, ये कुछ मिनट्स रहते हैं, फिर चले जा सकते हैं, लेकिन कुछ दिन में फिर दोबारा वापस भी आ सकते हैं. बहुत बार लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जानबूझ करके ये सब कर रहा है. कुछ और भी तरह के डिसऑर्डर्स हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल है, जैसे कि कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर. इनके सिम्टम्स के लिए इंसाइट अभी भी लोगों में नहीं आया है. इनको समझना बहुत मुश्किल होता है, इनको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ता है. कन्वर्जन डिसऑर्डर में मोटर एंड सेंसरी डिसफंक्शन होता है. मोटर मीन्स मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज लाइक चल नहीं पाना, हाथ का काम नहीं करना, ट्रेमर होना, एट्सेट्रा. सेंसरी मीन्स जो सेंस ऑर्गन्स के साथ जुड़ा हुआ हो, जैसे कि देख नहीं पाना, सुन नहीं पाना, बोल नहीं पाना. ये सब सिम्टम्स दिखते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर में. इनका एक सडन ऑनसेट होता है, यानी कि जो भी सिम्टम्स है वो एकदम से स्टार्ट होते हैं. लाइक वो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा या कुछ खाए तो उल्टी हो जाएगा. एंड जनरली ये सब तब होता है जब उस व्यक्ति के सामने कोई स्ट्रेसर होता है. स्ट्रेसर यानी कि जो उसको स्ट्रेस दे रहा हो. और हाँ, ये सिम्टम्स इंटेंशनली प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं. ऐसा लगता है देखने से कि इंटेंशनली किया जा रहा है, उसको अटेंशन सीकिंग का नाम दे दिया जाता है, लेकिन ये सिम्टम्स इंटेंशनली नहीं प्रोड्यूस किए जाते हैं उस पेशेंट के जरिए, उस पर्सन के जरिए. और जनरली स्ट्रेसर और सिम्टम्स के डेवलप होने के बीच एक रिलेशनशिप रहता है, जो कि बारीकी से ऑब्जर्व करे, समझे तो वो रिलेशनशिप दिखेगा, समझ में आएगा, उसको समझना है. फिर डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर होते हैं हमारे इंडिया में. ये आम बात है ये विश्वास करना कि
किसी के अंदर भगवान है, देवी आ गई है किसी के अंदर, लोग उन्हें पूछते भी हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विच नीड्स ट्रीटमेंट। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उसके अंदर दो या दो से अधिक पर्सनालिटी होते हैं। बहुत सी मूवीज बन चुके हैं इसके ऊपर। दो या दो से अधिक पर्सनालिटी होते हैं, पर किसी एक समय में कोई एक पर्सनालिटी ही मैनिफेस्ट होता है, और ये दोनों पर्सनालिटी एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे से अनअवेयर भी होते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम दिस, कभी कभी व्यक्ति तरह तरह के शारीरिक सिम्टम्स बताता है, बहुत तरह के शारीरिक सिम्टम्स बताता है, पर टेस्ट करवाने पर कुछ भी नहीं निकलता, रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं। जनरली इस तरह के सिम्टम्स 2 साल तक रहने चाहिए सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए। 2 साल या उससे अधिक ये समस्याएं रहती है, पर डॉक्टर के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट करवाने पर भी कोई एबनॉर्मल टेस्ट रिपोर्ट नहीं निकलता है। बट इसी चक्कर में व्यक्ति लगातार डॉक्टर्स चेंज करते रहता है। इस वजह से उसके सोशल और फैमिली फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट भी आने लगता है। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यू, अ मेंटल हेल्थ इश्यू, जिसे समझना ज़रूरी है एंड इट नीड्स ट्रीटमेंट। देन टीनेजर्स एंड जनरली फीमेल्स में एक तरह का डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जिसे हम क्लिनिकल टर्म में एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। इसमें मोटा हो जाने का एक इंटेंस फियर रहता है, और ये डर अंडरवेट हो जाने पर भी नहीं कम होता है। वो पेशेंट या वो पर्सन हरसेल्फ वो दूसरों के लिए खाना ज़रूर बनाएगी, इनफैक्ट खाना बनाने में प्री ऑक्यूपाइड रहेगी, पर खुद नहीं खाएगी। कभी कभी इन ऐसे लोगों में बुलिमिक एपिसोड्स होता है। वो एक ही समय में ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, फिर ज़रूरत से ज़्यादा खाने का उनके अंदर एक गिल्ट होता है और वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं। और अगर इस चीज़ का इलाज नहीं करवाया गया तो इस वजह से डेथ भी हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ कंसर्न्ड मेंटल हेल्थ इश्यू, जिस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें व्यक्ति अपने घर से दूर चला जाता है। इस पर भी बहुत सी मूवीज़ बने हैं, अगर आप याद करें तो। वो एक नया आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेता है, उसे अपने पुराने लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं होता है, याद नहीं रहता, वो अपना एक नया आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेता है। अधिकतर सीरियस स्ट्रेस में ऐसा होता है। जब ये ठीक होता है तो उस इंसान को अपने नए नाम के बारे में कुछ याद नहीं रहता। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और ये सारे सिम्टम्स जो मैंने अभी बताया है, ये जनरली स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स का एक रिएक्शन होता है। स्ट्रेस के वजह से ये डेवलप करता है। इनका एक सडन ऑनसेट होता है और ये टेम्पररी होता है, और रिकवरी भी एकदम अचानक से होता है। इनके शुरू होने के पहले कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होता है। अधिकतर स्ट्रेस से बचने के लिए ये इस तरह के सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं, जो कॉन्शियसनेस में नहीं होता है, ये अनकॉन्शियसली होता है, एंड दिस ऑल्सो नीड्स टू बी ट्रीटेड। सो these all are some mental health issues and early warning signs and symptoms which should be observed properly and should be treated. जो प्रॉब्लम झेल रहा है, who is suffering from problem, is generally indicated as an attention seeker. जब सिम्टम्स को रियलाइज नहीं कर पाते हैं लोग, खासकर फैमिली के लोग या आसपास के लोग या कलीग्स, तो क्या होता है, उसे यानी कि जो ये सिम्टम्स झेल रहा है, जिसमें ये सिम्टम्स डेवलप कर रहा है, उसे एक अटेंशन सीकर का नाम दे दिया जाता है। ही इज इंडिकेटेड एज एन अटेंशन सीकर।
उससे कहा जाता है कि ड्रामा मत करो, उससे ये कहा जाता है कि उसे एडवाइस दिया जाता है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है फिर भी तुम खुश नहीं हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो इस तरह की बातें उससे की जाती है। बट यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, यू शुड नॉट मेक देम फील गिल्टी। उन्हें समझने की ज़रूरत है। इस समय बहुत ज़रूरी होता है उनसे बात करना, खुलकर बात करना, उन्हें इनकरेज करना कि वो अपने फीलिंग्स को ओपन अप करें। टॉकिंग अबाउट सुसाइड इज़ वेरी नेसेसरी। कीप एम्पैथी विद देम, टेल देम कि एक समय ऐसा आता है जब जिंदगी बोझ लगने लगता है, बट हमेशा वो सीन नहीं होता है। इट कैन बी सॉल्व, एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। हम मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह की बातें उनसे करना बेहद ज़रूरी है, उनसे बात करना बेहद ज़रूरी है। ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, स्टिग्मा को हटाना है। मेंटल इश्यू कोई छूत की बीमारी नहीं है कि उनसे डिस्टेंस बना लिया जाए। छूत की बीमारी की भी दवा होती है, मेंटल इश्यूज की भी दवा है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकेशन है। सो अंडरस्टैंड the early warning signs and make the patient himself understand the signs. It will talk to them, help them open up their feelings. This will be a primary treatment which is very important. So with this I am ending my discussion today. Hope I was able to make you all understand the early warning signs, how you can realize the signs and symptoms, and how you can help a person with these symptoms to treat himself. Thank you.